Hello everyone, my name is Vipra Joshi and I am an assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Electrical Engineering Department. Today I am going to deliver a lecture on subject of computer aided electric machine design. In this video, I will be explaining MMF calculation for iron part of electrical machine. This is unit second topic of 6th semester in electrical engineering branch. Magnetomotive force is defined as the current flowing in the electrical circuit is due to the existence of the electromotive force, and we can say it is magnetomotive force. It is required to drive a magnetic flux in the magnetic circuit, so it produce the magnetic flux in the magnetic circuit. Okay, so the SI unit of the MMF is ampere turn and CGS unit is Gilbert. The MMF for the inductive coil is shown in the figure. If we have a coil, okay, so then this is the magnetic field and this is the direction of the field. Okay, so here MMF is defined by the N into I, N in the number of turns of the coil and I is the current in the coil. Okay, so we can say MMF is the product of the current around the number of turns, okay, and the number of turns in the coil. So it is the product of number of turns of the coil and current around the turns. Okay, so MMF is defined as the work done is moving on the magnetic unit pole around the magnetic current. Okay, so we can say MMF is also known as magnetic potential. Okay, so it is the property of the material to give rise the magnetic field. It means it is the property that how much magnetic field is create around the coil, how much magnetic field is create around the coil. For this we have required a force which is called the MMF. Now, magnetic circuit of a DC machine. The different part of DC machine magnetic circuit consists the magnetic circuit of pole, are yoke, pole, air gap, armature teeth and armature core. Therefore, the ampere turn per pole to stabilize the required flux in the magnetic circuit. It means these all part required to produce the magnetic flux. So we can say ampere turn per pole equal to ampere turn on yoke, ampere turn on pole, ampere turn on air gap, ampere turn on teeth and ampere turn of coil. Okay, armature core. So here the first is represented yoke and the second is the pole. Okay, and this is the air gap. Here we have a air gap in the electrical machine and this is the armature teeth and this is the armature core, and here we have a leakage flux. So this is the figure of the magnetic circuit in which these are the part of the magnetic circuit. These are required to produce the magnetic flux in the circuit.
Now, if you consider a machine with a small air gap like this, here you can see this is the rotor, this part is rotor, and this part is stator. Okay, so here the air gap is only this. It means this is the air gap. So consider a machine with a small air gap. It assume here, okay, we assume here there is a small gap. So then suppose this is the magnetic flux of line and this is the direction of the magnetic flux. Okay, because we can say here this is represented करंट बाहर की ओर है, और अगर आपकी करंट बाहर की ओर है तो आप अपना थंब बाहर की साइड करोगे, फिर आप राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपनी और फिंगर्स है उसे घुमाओगे तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस साइड आ रही है, और ये आपका डिनोट करता है कि करंट अंदर की तरफ है। तो आप अपना अंगूठा अंदर की तरफ करोगे 90 डिग्री पे, और फिर जो और अंगुलियां हैं उनको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड की ओर है। तो इस हिसाब से हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन किस साइड है। तो हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि यहाँ ये हमारा रोटर पार्ट हो गया, ये हमारा स्टेटर पार्ट हो गया, और बीच में बहुत स्मॉल एयर गैप है, और यहाँ पे जो पोल क्रिएट हो रहा है वो नॉर्थ, इधर साउथ, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ओके, सो सपोज this is the magnetic field lines. Okay, so here two poles are create, one is north and corresponding to this is other is south pole are induced here on the stator. Now अब अगर हम देखेंगे इस सर्किट का एमएमएफ डायग्राम, तो हमने ये देखा कि हमारा यहाँ पे दो टाइप से एयर गैप आ रहा है, रिलेक्टेंस 0 है, इसका मतलब सारा का सारा जो एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, एमएमएफ फॉर्मूला N इंटू आई। ओके, सो जो सारा का सारा एमएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा एमएमएफ एयर गैप में यूज़ हो रहा है, क्योंकि रिलेक्टेंस 0 है तो और पार्ट में एमएमएफ यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो एयर गैप में यूज़ होगा टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स, और इस फ्लक्स का कुछ पार्ट तो आपका नॉर्थ पोल की साइड जाएगा और कुछ पार्ट साउथ पोल की साइड जाएगा। मीन्स हमारा कुछ पार्ट n/2 इस साइड है और n/2 इस साइड है, और हमने एक बेस लाइन ले ली है अल्फा इक्वल टू 0। सो अब हम जो बेस लाइन है उससे इसको कट करेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर को कट करेंगे, फिर ओपन करेंगे तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ये हमारी अंदर को जा रही है करंट और यहाँ बाहर आ रही है। ठीक है, तो आपका सेम सर्किट बनाया है इस तरीके से, और जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकालेंगे तो वो हमारी इस तरीके से बनेगी, और इसमें इस तरीके से होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो अब हम ये जो ऊपर को जाने वाला फ्लक्स का डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव, और नीचे को जाने वाला फ्लक्स का डायरेक्शन इसको हम नेगेटिव लेंगे। वो हम एज्यूम कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, अगर हमने इसको नेगेटिव लिया तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम देखेंगे इनकी वजह से इस पार्ट से इस पार्ट तक का जो आपका फ्लक्स है, एमएमएफ है, वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है।
Ni/2. ओके, और इसके बाद आपके इस पार्ट के लिए ये नेगेटिव आ रहा है -Ni/2, और इसके लिए भी नेगेटिव आ रहा है -Ni/2. तो इस तरीके से हम MMF डायग्राम इसका बना सकते हैं. तो ये आपका हो गया कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए, MMF डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग. नाउ फॉर द सेम, अगर आपने इस सर्किट के लिए MMF डिस्ट्रीब्यूशन करा विथ सिंगल वाइंडिंग, यहाँ आप देखोगे कि MMF जो N/2 है, हमने एज्यूम करा है कि वो जो फ्लक्स ऑफ लाइन है वो कितनी बार कर रही हैं, कट कर रही हैं ट्वाइस टाइम. अगर आप यहाँ देखोगे फ्लक्स ऑफ लाइन एयर गैप को एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार यहाँ कट कर रही है. एयर गैप आपके यहाँ पे था, ठीक है, तो 2 बार कट कर रही है, इसीलिए आपका MMF Ni/2 यहाँ कंज्यूम हुआ, Ni/2 यहाँ कंज्यूम हुआ. ओके, सो अब आपने वेव फॉर्म देखनी है, इसकी कैसे बनी, रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई है वेव फॉर्म. ये आपका रेक्टेंगुलर शेप हो गया. तो MMF इक्वल टू N into I. Here we assume the reluctance of the iron part is negligible. So half of Ni/2 is consumed to create a flux from the rotor to stator part, and half of the flux required to consume the magnetic flux from stator to rotor part. Okay, here half of the flux MMF is required to consume a flux, means to produce a flux for rotor to stator, and half of the stator to rotor. ओके, तो यहाँ पे आपने जो नीचे जाने वाली जो डायरेक्शन है उसको आपने लिया है पॉजिटिव, और ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को लिया है नेगेटिव. ओके, तो वी कैन से here we take positive MMF of the flux from rotor to stator, and we take negative MMF as the flux form from stator to rotor. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या था, ये वाला आपने पॉजिटिव लिया तो आपको पॉजिटिव वेव मिला, फिर आपने ये डायरेक्शन नेगेटिव लिया तो आपको नेगेटिव वेव मिला, इसके बाद आपको पॉजिटिव मिलेगा और इधर नेगेटिव मिलेगा. तो इस तरीके से ये सीरीज़ आपकी चलती जाएगी, और ये हमारा MMF डायग्राम हो गया. ओके, सो वी कैन सी हेयर द MMF इज़ द रेक्टेंगुलर शेप वेयर MMF plus Ni/2 is consumed in setting up the flux from rotor to stator, and Ni/2 is consumed in setting up the flux from stator to rotor. Okay, so Ni is the ampere conductor per slot, and we can say here the current is depend upon the direction of the current, means we know our MMF F equal to N into I. So here MMF is depend on the direction of the current. अब अगर आपने देखना है यही MMF डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए कैसे होगा बनेगा, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए इसको बनाना चाहते हैं, सपोज consider a structure with a 5 slot here. Okay, so 5 slot per pole per phase, and here we can see on one slot there is a 2 layer of winding. Now if we see the wave diagram for this, okay, so at first
For example, if we take machine and here this is the incoming current and this is the outgoing. Okay, so अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए सेम चीज़ देखेंगे तो इसकी वजह से जो हमारा एमएमएफ है कुछ इसकी वजह से मिलेगा और कुछ इसकी वजह से मिलेगा। तो हमने यही सेम चीज़ सेम स्ट्रक्चर बनाया है आपका इधर। ओके, अब हम एमएमएफ वेव फॉर्म देखेंगे इतने पार्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, सेम डायरेक्शन आ रही थी, इट मीन्स ये तो हमने ले लिया था पॉजिटिव। ओके, फिर बाकी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम नेक्स्ट लाइन में कंसीडर करेंगे इस पार्ट की वजह से और इस पार्ट की वजह से। तो हम देखेंगे बीच में तो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा डायरेक्शन का, तो इतना पार्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, बाकी हमारा नेगेटिव आएगा। अब सपोज हम लास्ट स्टेप में यहाँ से यहाँ तक का एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ से यहाँ नेगेटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव है उसे हमने लिया है Ni/2 और जो नेगेटिव है उसे लिया है -Ni/2। अब इन सब की वजह से हम एक क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनाएंगे इधर। वो देखते हैं कैसे बनती है। देखो, ये था हमारे पास, ये हमारी 3 वेव फॉर्म बनी थी अलग अलग पार्ट की वजह से। अब जब हम इसका पूरा टोटल का सेम बना रहे हैं, अब हम यहाँ से इतने तक के पार्ट में देखेंगे तो हमारा 3 बार नेगेटिव है, इसका मतलब 3 बार नेगेटिव ऐड करके आएगा -3Ni/2। फिर हम यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का देखेंगे तो इसमें आपका ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, बट ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। सो एक नेगेटिव ने एक पॉजिटिव को कैंसिल किया तो इट मीन्स एक नेगेटिव बचा, तो -Ni/2 यहाँ पे आएगा। तो इसमें भी इसलिए वेव फॉर्म आपकी बेस लाइन से नीचे रहेगी नेगेटिव में। अब आपने देखा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, तो इसमें आप देखो यहाँ ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। एक नेगेटिव ने एक पॉजिटिव को कैंसिल किया, एक बार पॉजिटिव आया तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गया Ni/2। नाउ अब हम इस पार्ट से इस पार्ट में देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इट मीन्स +3Ni/2। फिर सेम हम इस वाले पार्ट के लिए बनाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव यहाँ, तो 2 बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव ने एक पॉजिटिव को कैंसिल किया, एक पॉजिटिव बचा, तो इसकी वजह से जो आपका आया पॉजिटिव आया। फिर सेम जब नेक्स्ट के लिए देखोगे तो आपका नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आपको टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन का एमएमएफ है उसकी जो रिजल्टेंट एमएमएफ वेव फॉर्म है ये मिल जाएगी। अगर आप इसे देखोगे तो आपको नियर बाय क्लोज टू साइनसॉइडल वेव फॉर्म के क्लोज ऐसे शेप में दिखेगी। ओके, तो ये साइनसॉइडल वेव बनना स्टार्ट हो गई है इसका मतलब। तो अगर ये साइनसॉइडल वेव बनना स्टार्ट हो गई है जब हम ज़्यादा स्लॉट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हार्मोनिक्स जो हैं उसके वो कम हो रहे हैं। जो आपके स्टेप्ड हार्मोनिक्स आ रहे थे, जो आपके पहले वाले में आपने देखा जो स्टेप आ रहा था सिंगल के लिए वो इतने इतने में आ रहा था, ठीक है, तो इसमें जो स्टेप्ड वेव है वो थोड़ा रिड्यूस हुई और साइनसॉइडल बनना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब हार्मोनिक्स क्या हो रहे हैं आपके, कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपने ये वाला स्ट्रक्चर लिया 5 पोल स्ट्रक्चर और जब हमने इसकी वेव फॉर्म देखी, ये इसकी वेव फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ भी आप देखोगे सेम वैसी बनी जो स्टेप आपको मैंने पिछली बार बताए थे इससे पहले वाले स्लाइड में। तो सेम ये वेव फॉर्म वैसी है, ये डायरेक्ट रिजल्टेंट दिखा रखा है, ये स्टेप वेव फॉर्म बन रही है और नियर बाय द साइनसॉइडल वेव फॉर्म बन रही है। तो we can say that now if we see the wave diagram then we can see here it is the
stepped wave. Okay, so and same as to the sine wave. Here the formula for the ampere turn per parallel path equal to NPS, means phase number of turn in series, and IC. Here IC is the conductor current. Okay, so we can say here AT per phase equal to A into NPH series, IC equal to NPS series into IA. Here IA is the phase current which is equal to the A into IC. ओके, यहाँ पे NC जो है वो क्या है आपका, कॉइल टर्न है इक्वल टू कंडक्टर लेयर. जितनी भी आपकी कंडक्टर लेयर होगी उतने आपके नंबर ऑफ कॉइल टर्न होंगे. जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा, यहाँ हमारे 5 हैं. ओके, तो जितनी भी आपकी लेयर्स, एक लेयर में कितने हैं, 2 लेयर्स हैं वाइंडिंग की. ठीक है, तो जितने भी आपकी कंडक्टर लेयर होगी वो आपका क्या होगा, NC होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बना AT पर पोल पर फेज इक्वल टू NPS सीरीज मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज अपॉन P इंटू IA. नाउ अगर आप इस तरीके से, अभी आपने जो इस वाले फिगर में था 3 पार्ट के लिए लिया था, 3 स्लॉट के लिए लिया था. अब अगर ये आप ये चाहते हैं कि बीच का जो ये गैप आ रहा है वो हम हटा दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा MMF प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक आयरन पार्ट इधर कंसीडर कर लेंगे, पूरा का पूरा आयरन पार्ट इधर कंसीडर करेंगे. तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो वेव फॉर्म आएगी स्टेप्ड वेव फॉर्म वो इस तरीके की आएगी रिजल्टेंट. ओके, तो जब हमने बीच का पार्ट हमारा जो है गैप का हमने वो नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारी जो वेव फॉर्म है और स्टेप्ड बनेगी. तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आएगा आपका ट्रायंगुलर टाइप का, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो आपके और रिड्यूस हो जाएंगे. ओके, तो ये सारे के सारे स्टेप नहीं आएंगे. इट मीन्स इट इज़ द कंप्लीट साइन वेव. इट मीन्स हार्मोनिक आपके और ज़्यादा रिड्यूस हो गए. जो इस तरीके से आएगी आपकी पहले साइन वेव आएगी, तो इसका मतलब आपके जो हार्मोनिक्स हैं वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे जब हमने उसको पूरा का पूरा एक आयरन पार्ट ले लिया. सपोज हमने एक मशीन ली जिसमें ये इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स हमने करंट डायरेक्शन ले ली और पूरे के पूरे पार्ट में हमने पीसेस ले लिए. तो ये आपका क्या है, DC मशीन का केस है. तो अगर हम DC मशीन, इस तरीके की मशीन के लिए अगर हम MMF निकालेंगे तो वो हमारा ट्रायंगुलर शेप आएगा. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं DC मशीन के केस में जो हमारा MMF का वेव शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रायंगुलर मिलेगा. तो दिस इज़ द resultant wave shape in case of electrical machine. The shape of the MMF is triangular. तो ये आपके डिफरेंट पहले आपने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के केस में देखी वेव फॉर्म किस तरीके से आई. फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा कि हम अलग अलग पार्ट की वेव फॉर्म बना के उस पूरे का रिजल्टेंट MMF किस तरीके से निकालते हैं. तो उसी तरीके से हम इन सब की निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए. तो यही हमारी MMF कैलकुलेशन है फॉर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. एंड MMF इक्वल टू N इंटू I, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड I इज़ द करंट इन द कॉइल. थैंक यू.